how that journey was it easy or very complicated, or So it is altogether a personal journey. what Shruti is apart from her career? राजस्थान इज टिपिकली लाइक गर्ल्स के लिए एक टिपिकल माइंडसेट है. This story is slightly very impressive and interesting that बट आई लव चैलेंजेस नाउ. आदत हो गई है. so I would like to know what Shruti is apart from her career or job or professional life. What does she likes, or what does she do? So basically, to understand what how you are, based on that we can discuss further. So please enlighten me about yourself. आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन. फर्स्ट थिंग, very simple, very down to earth. Very means it is not very, but yeah, I am down to earth and very simple person, I would say. Like nature loving, pet loving, human loving. Humanity is my like first priority. Like when I saw my husband, that was my first criteria. Like a good, he should be a good human. Oh, So humanity is like kind of a thing I connect with people. okay. And in small terms, I would say like honesty means me a lot. Respect Mm, means me a lot. mm. So yeah, means that makes a bond very organic automatically. If these three things are there, like I'm respecting you, you are respecting me. So I would just like to know about your journey from where you started and becoming a CEO today. There is some elements that I have gone through from my end. So I just want to hear it from you the about your journey. So like uh, राजस्थान इज टिपिकली लाइक कैसा है ना कि गर्ल्स के लिए एक टिपिकल माइंडसेट है. दे Correct, शुड correct. सेटल. Mm, मीन्स करियर ओरिएंटेड गर्ल्स दे डू नॉट प्रेफर. सिंपल right. इन Yeah, शॉर्ट. एंड right. आई वॉज लाइक, Mm, मैं तो थी ही ऐसी. mm, मतलब मेरा एम्बिशन ही ऐसा था और मुझे अट्रैक्ट ही वही चीज करती थी. लाइक मेरे फादर, माय फादर वर्कड इन mm, बिरला ग्रुप. mm, ओके. mm, सो फादर के जो एमडी होते हैं, मतलब फादर की mm, कंपनी में जो एमडीज थे, यानी mm, डायरेक्टर पोजीशन के जितने भी लोग हैं, दे आर mm. स्टिल कनेक्टेड विद मी Oh, सिंस चाइल्डहुड. oh, nice. सिंस चाइल्डहुड. तो मैं उनसे इंटरेक्ट करके मुझे बड़ा अच्छा लगता था. और मुझे Mm, बाकी हायरार्की में इंटरेस्ट ही नहीं आता था. mm. लाइक मैनेजर पोजीशंस और ये और वो. तो जो डिसीजन मेकर्स होते थे ना, मुझे बड़े अट्रैक्ट करते थे. एंड लाइक वाइस प्रेसिडेंट हो गए, वो हो गए. तो ऐसे करके मैं थी एम्बिशियस और मेरी फैमिली थी लाइक दैट. लाइक वो चाहती थी कि हम लोग सेटल, मतलब लड़की को सेटल हो जाना चाहिए. On top of that, yeah, I'm listening. On top of that, you were the person who was selecting your the better half. Like you told, right? He should have certain criteria. In this all complications, right? As per you told the Rajasthan ka vibe and all. So in that context, you were also choosing your better half. So how that journey was it easy or very complicated, or the way you found your this thing? एक्चुअली ना, इसको एक चीज बोलते हैं, आपने जले पे नमक छिड़क दिया है. Okay, okay. सो इट इज ऑल टुगेदर अ पर्सनल जर्नी. दो लाइक अगर इसे हम इन शॉर्ट बोलना चाहें तो लाइक हमारे यहाँ पे, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन राजस्थानी बॉयज, आई हैव नो इश्यूज विद दैट. बट द पॉइंट इज आई एम नॉट सूटेबल फॉर देम. आई Oh, वुड रादर से. correct, correct, correct. It's कि good नहीं, that अगर we keep ourselves different, that rather than telling that those people are not capable or different from you. एब्सोल्युटली व्हाई शुड वी डिसरिस्पेक्ट देम, राइट? Correct, So the correct. point was like उनका माइंडसेट ऐसा है कि like 30,000 40,000 में they are the happy person. Hmm. And I am that person. 30,000 or 20,000 is my starting. Okay, okay. Nice. So मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी. जहां पे वो लोग उनका स्टेगनेशन या फिर एक सेचुरेशन आता है, वहां से Mm-hmm. मेरी Once, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग हो रही थी.
तो correct, इन correct. टर्म्स ऑफ मनी मैंने आपको वो थोड़ा-सा सही क्रिस्प है. एंड I क्लियर I बताने की got the कोशिश concept. की, Yeah, राइट? yeah. तो उससे माइंडसेट भी पता चलता है। अब उसके लिए तो एम्बिशन लाइक 50,000 वुड बी लाइक ड्रीम कम ट्रू। Dream. Hmm. और मेरा तो लाइक मैं तो हाफ वे भी नहीं आई हूँ अभी। Hmm. एंड Yeah. मेरा तो मल्टीनेशनल में स्टार्टिंग ही मल्टीनेशनल से हुआ। So as far as Strange Aurora is concerned, when this thing came up, and what is your vision behind starting your own firm? Okay. So like from the beginning, like I was an average girl, मतलब average student I would say. I was never a topper और 60% 70% से ऊपर जाना ही मतलब पॉसिबल ही नहीं था। क्यों जाना है मतलब? मेरा क्वेश्चन था क्यों जाना है? Purpose क्यों क्या है? इतनी मेहनत करनी है? Hmm. है ना? तो आई वाज लाइक कि ठीक है, जो चल रहा है वो वेरी गुड है और उसमें भी मैथ्स तो बहुत ही पुअर पुअर था, ठीक है? हाँ. तो उस क्राइटेरिया से मैं निकली एंड बट मेरे सपने सीधे डायरेक्टर पोजीशन पे हिट करते थे, मतलब मैं उनसे कोरिलेट करती थी। तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि लाइक मैं ओवर एम्बिशियस हूँ या मैं क्लाउड्स में रहना पसंद करती हूँ। लाइक मुझे ऐसा हाँ. लगता था एट दैट मीन्स इन 12th मुझे ऐसा लगता था मैं एक डे ड्रीमर हूँ। मुझे दिन में सपने देखना पसंद है। Okay, okay. तो उससे क्या हुआ 12th क्लास में आई वाज जगलिंग हार्डली विद माय लाइक ड्रीम्स कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है। और एक्चुअली मेरा कॉलेज में सिलेक्शन जो मैं थी साइंस मैथ्स की स्टूडेंट और हाँ. मेरा जो सिलेक्शन था बीएससी में होना था। नॉर्मली ग्रेजुएशन उसी में होती है, राइट? Hmm. तो उसमें मुझे एडमिशन मिल नहीं रहा था क्योंकि मेरी परसेंट 59 कुछ था, 59 पॉइंट समथिंग थी। 60 एंड अबव को ही एडमिशंस मिल रहे थे। तो मेरा एडमिशन हो नहीं रहा था। उस समय मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है मेरे साथ कि मेरा हाँ. कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? 59 पॉइंट समथिंग इज नॉट दैट हाँ. स्मॉल की हो ही ना सिलेक्शन, नहीं हो Hmm. रहा था। दैट टाइम मैंने साइबर कैफेज जाना स्टार्ट किया कि नहीं, मैं फाइंड आउट करती हूँ व्हाट आर द अदर करियर्स अपॉर्चुनिटीज। अगर मेरा नहीं हुआ, आई वाज अफ्रेड कि अगर मेरा Which year नहीं this हुआ। was? Which year विच this was? ईयर? Hmm. कैसे बताया, 2001 के आसपास की बात होगी आई गेस। Okay, okay. Hmm. या मतलब 12 तो आई गेस हाँ 2003-4 के आसपास। हाँ। I was curious about your cyber cafe story. The next question which I was putting across was this itself. What made you to go in 2001 that going to cyber cafe? Nowadays, it's just a click away. We can understand what career opportunities we have or what other things I can do. So in that point of time in 2001, what was your curiosity? One thing I thought was understood was you are a very curious person. You try to know the other way around or understand other things around your circle. So just tell me about what is the story behind that cyber cafe and how did that help you build your journey ahead? As I said, like it was a fear, like मेरा कहीं एडमिशन नहीं होगा Hmm. और मुझे मतलब जॉब करियर उस टाइम पे ये था कि ग्रेजुएशन के लिए मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था। तो जो फियर था, फियर ड्रैग मी टू दिस, क्योंकि घर में आप रो नहीं सकते। मतलब घर में Hmm. सब लोगों के सामने ना आपको सिर्फ आंसू आते हैं कि मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा। यू फील पिटी ऑन Hmm. योर Hmm. सेल्फ एंड Hmm. फ्रॉम दैट व्हाट मीन्स मुझे ऐसा लगता था साइबर कैफे में वो पर्दे होते थे, एक केबिन आपको छोटा सा दे दिया जाता था, तो आपको रोना भी आएगा तो वहां पे रो, लेकिन पता करते रहो कुछ 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 कुछ। तो इट विल हाँ. मीन्स आई ड्रैग्ड मीन्स आई डाइवर्टेड माय माइंड इनटू अ पॉजिटिव वे हाँ. कि रोना भी है तो एटलीस्ट वहां पे रो, लेकिन कुछ फाइंड आउट करते हुए। हाँ. तो साइबर कैफे आई स्टार्टेड गोइंग एंड इट चेंज लाइक जब मैं रिसर्च कर रही थी कि लाइक, और फिर क्या होता है ना, जब आप गूगल में आप चेक करते हो तो ऑप्शंस इतने सारे आ जाते हैं, Hmm. है ना? तो आप क्यूरियस ऑटो, आई एम अ क्यूरियस वन, तो क्यूरियस के चक्कर में क्या होता था, अच्छा चलो ये तो देख लेते, क्या पता ये मेरे लिए हो। हाँ. Hmm. ऐसे करके आई स्टार्टेड गूगलिंग और गूगल को मैंने जो एंजॉय करना चालू किया, देन आई
came into that research part की research का conclusion निकलना चाहिए, तो every day it was a very difficult journey, क्योंकि रोते हुए आना और रोते हुए जाना। तो वापस मतलब बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था उस रिसर्च के थ्रू। देन सडनली मैंने फाइंड आउट किया कि व्हाट इज द करियर ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर दिस दैट। तो मुझे क्या करना है, मुझे जॉब तो करनी है, ये तो कंफर्म है, मुझे काम करना है। ये तो पक्का हो गया था कि जॉब तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं जैसी लड़की हूँ, मुझे घर में काम करना पसंद नहीं है, तो मुझे हाउस होल्ड हेल्प लेनी ही पड़ेगी, चाहे कहीं पर भी रहो। तो अगर वो करना है तो जॉब करने के लिए, और जॉब आप 5,000 की 10,000 की जॉब करके आप हाउस होल्ड हेल्प को कैसे अवेल करोगे? नॉट पॉसिबल। तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बड़ा ड्रीम, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाना है, कम से कम 15-20 हजार में तो अपना फॉल होना ही चाहिए। ऐसे करते करते ना मुझे लगा कि मैनेजर पोजीशन इज गुड फॉर मी। फिर एक दिन घर पे जाती थी, बोलती थी मैनेजर ठीक है क्या? तो मैनेजर को तो ये ऑपरेट करते हैं पापा की पोजीशन में, नहीं 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 चलेगा ऐसे ऐसे। तो एवरी डे इट वाज अ फाइट इन माय माइंड, और मैं शो नहीं कर सकती थी ये फाइट किसी को। तो जाके, और ये सारी जो भड़ास होती थी वहां पे जाके साइबर कैफे में निकलती थी। व्हाट आर द हायरार्की, क्या होती है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट की हायरार्की में टॉप कौन होता है? तो ऐसे करके कि नहीं मेरे पे कोई रूल ना करे। Here recently I was attending one of the seminars. There the person who was addressing, right, he told something about what leaders should do, and what should be their work, day-to-day work. They should not be juggling around the operational work or sitting and doing all the office work, but they should, the only thing what they should do is they should think that how I should make this happen, right? Whatever you told me till now in the early days of your life, you are by default working on those things as like you were thinking like what I have to do, how I have to do. You were looking for other opportunities and understand how these things are operating. So me for myself, I just understood it from a seminar, but you are a live example, I can say. Whatever he told is just relating it to me here now. So in this process, you, as you told, your father was an MD for a company and the other directors were also associated with that, right? But in employee. Okay. So in that he was a connection. He had connection with the people who were the directors and all. So in that journey, you spoke or mentioned about your school life, wherein you had a lot of struggles going through education and all. What was it like before going to the actual part of your career? I just want to know about that itself. How it has shaped you to become a better person in today's time. तो ये डायलॉग बहुत फेमस हो गया है, बट मैं अपनी फेवरेट हूँ, है ना? ओके ओके। तो मैं अपनी फेवरेट, मतलब मैं इसको टैग नहीं करना चाहती, बट द पॉइंट वाज कि मैं अपनी दुनिया में अपने आप को, अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। मैं, बिकॉज फर्स्ट थिंग आई वाज अ लर्नर एंड आई एम अ क्यूरियस पर्सन। तो उससे क्या होता था ना कि मुझे जैसे डायरी लिखना बहुत पसंद था। द आई थिंक इन 4th और 3rd स्टैंडर्ड आई गॉट टू नो कि डायरी राइटिंग इज समथिंग यू कैन डू इट। तो जब से मुझे पता चला, आई थिंक 3rd और 4th क्लास से आई एम राइटिंग डायरी, और मेरे पास इतनी डायरीज रखी होगी जो मैंने हर साल की एक डायरी, बिकॉज मेरे फादर के पास डायरीज आती थी और मैं हर साल खूब डायरीज भरती थी। तो डायरी राइटिंग करके मुझे ये पता चला कि आई एंजॉय माई कंपनी एंड आई लव इट। तो मैं अपने लोनलीनेस को एंजॉय करती थी, एंड आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट गॉसिप जो होते हैं ना, गॉसिप स्कूल में गॉसिप सेंटर्स होते हैं, ग्रुपिंग्स होती है, नेवर अ पार्ट। और जो मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स थे वो मुझे लेते थे कि लाइक व्हाई शी इज नॉट एंजॉयिंग विद अस। तो मुझे टैग मिलता था। पहले एक वो होती थी, एक छोटी छोटी स्लैम बुक्स होती थी उस टाइम पे। तो स्लैम बुक में दे यूज टू कॉमेंट ऑन मी व्हेन आई गिव इट टू देम कि आप मुझे स्लैम बुक भर के दो, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, लाइक दैट एंड एवरीथिंग।
तो they used to comment a little bit of comment like you are a navy person. As I said before कि मैं अपने आप में अपनी दुनिया में बिजी थी, तो उसके बेनिफिट मुझे बहुत मिले। जैसे मुझे इलेक्शन 5th क्लास में मुझे इलेक्शन में खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि श्रुति डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इलेक्शन? तो मैंने कहा ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खड़ी हुई और जो सामने वाली बंदी थी उसको सिर्फ 2 वोट मिले और बाकी सारे वोट मुझे मिले Oh, क्लास में। oh, nice. एंड सेकेंडली आई हैव नेवर हर्ड कि 8th क्लास में किसी बच्चे ने अपना नाम चेंज किया हो, Hmm. बिकॉज मुझे अपना नाम पसंद नहीं था एंड Oh, मुझे बिल्कुल अपना नाम नहीं पसंद था। और मैं हमेशा से बोलती थी, मैंने बहुत सारी बातें पूछी कि क्यों रखा है मेरा ये नाम, क्यों रखा है, बहुत सारी बात पूछा। मम्मी पापा ने कहा कि दादी ने रखा है, दादी का फेवरेट नाम होगा इसलिए उन्होंने रखा है। तो ठीक है। एंड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। 8th क्लास में जैसे ही मुझे पता चला कि 8th बोर्ड के बाद में मैं चेंज, हमारे टाइम में 8th बोर्ड लॉन्च हुआ था, तो 8th में मुझे पता चला बोर्ड के बाद में चेंज नहीं हो पाएगा नेम। okay, okay. पहले ही कर लेना आई उससे. हाँ, वो पूरी स्क्रूटनी जो साइबर कैफे वाली थी ना, स्टार्टेड फ्रॉम देयर। मैं सारे नाम सर्च करती थी, कितने प्यारे प्यारे नाम्स हैं, कितने कितने प्यारे प्यारे नेम है दुनिया में। तो मैं सर्च करती थी और उसके बाद में आई फाइंड आउट कि नहीं, मुझे श्रुति नाम पसंद है और स्पेशली इन हिंदी। आई जस्ट लव दैट नेम इन हिंदी। Okay. Visual श्रुति। presentation इसका बहुत ज्यादा या क्यूट लगता है yeah, सब. that present, Correct. yeah. मैंने 2-3 छोटे-छोटे नाम और सेलेक्ट किए थे, पर श्रुति का मीनिंग सर्च किया 8th क्लास में। और मैंने पूरा प्रोसीजर खुद ने किया। मतलब आज भी मैं सोचती हूँ कैसे किया होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू Correct, चेंज। मुझे correct. नहीं पता, बट मैंने सब कुछ चेंज किया और मेरे फादर मदर कोई इन्वॉल्व नहीं थे। मतलब उनको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इस चीज में कि ये क्या कर रही है। और मैंने ये सारा काम कर दिया एंड इट हैज बीन चेंज्ड। एंड सरप्राइजिंगली नेक्स्ट ईयर से मेरा नाम चेंज हो चुका था। Oh, nice. नाइस नाइस नाइस, बहुत मस्त स्टोरी है ये तो। आपने सेल्फ से सारी चीजें की और आपको उसका रिजल्ट भी उसी टाइम पे मिला। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एट दैट एज व्हाट पीपल ट्राई, राइट? इवन आई एम रिलेटिंग टू लॉट ऑफ स्टोरीज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल और एक्सप्रेसिंग। सो लॉट ऑफ स्टोरीज आई एम लाइक स्कूल लाइफ के जो भी ट्रॉमास वगैरह जो मेरे थे, आई एम जस्ट एबल टू रिकॉल दैट राइट नाउ. So it is very personal for me, whatever you are telling, to be very frank enough. But I'm not going into that. But whatever I tried that time, or any kid that time would have tried to make his life better, so did not succeed at that time, because maybe because he did not had all the maybe he was just thinking about it, not attempting to do any difference in that, any activity is doing particular for that, or he was just going through कि वो सब करके अपने अंदर ही डाल के बैठा है, कुछ उसके लिए कुछ कर नहीं रहा है. So this story is slightly very impressive and interesting, that we have to put across all our efforts, so that whatever we are thinking can be achievable in the very early days of life. So that I understood. And the other thing, in your career, after you having a challenging school life and a traumatic school life, if you would have said it that way, um, yeah, yeah, fine. After juggling a lot of challenges and all, in your college life, I saw that you were not opting for desired college, or everybody who would like to go for that tag, right? That is MBA. You did not opt for that, but people were behind you to offer you an MBA. So how this change happened, and why was that you were not accepting MBA at that point of time? So we'll start with graduation first. सो हमारी मतलब जो राजस्थानी फैमिलीज होती है, मतलब मिडिल क्लास आई वुड से, उनमें एजुकेशन फॉर गर्ल्स इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. तो पहले तो ग्रेजुएशन करना ही इट वाज अ चैलेंजिंग. तो पीपल वर फीलिंग प्राउड अबाउट कि लाइक हमारी बेटी ना ग्रेजुएशन कर रही है.
तो दे वर थिंकिंग इन दैट वे कि कर ले बेटा, कर ले, इट्स ओके। तो हाँ, वो दे वर टेकिंग प्राउडली। तो एंड आई स्विच फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड टू कॉमर्स at that time because I wanted to do MBA. हाँ, So, right? okay, So that was challenging. Like साइंस हाँ, स्टूडेंट को कॉमर्स कैसे समझ आएगी? तो वो बहुत ही चैलेंजिंग था। तो एजुकेशन इज समथिंग आई वांटेड टू डू, मीन्स देयर इज नो हाँ, ऑप्शन ऑफ नो। तो वो तो मैंने किया, बट पॉइंट ये था कि ग्रेजुएशन में मैंने बहुत स्ट्रगल किया और एंजॉय किया। स्ट्रगल को एंजॉय किया। okay, जैसे आप okay, अभी अभी जो हमारी सरकार है मोदी जी की, तो वो कहते हैं ना कि लाइक आपदा में अवसर, ये अभी आया है ना? तो व्हाट आई टुक इट इन मींस ग्रेजुएशन में अप्रोक्सीमेटली 2004 के आसपास, 3 के आसपास की बात होगी। तो उस टाइम पे व्हाट आई थिंक इज कि मेरे फादर की एक सिंगल इनकम है, हम 3 बच्चे हैं। हाँ, और हाँ, हम लोग रिसेंटली, मतलब पहले हमारे कोई एक्सपेंसेस नहीं थे, वी शिफ्टेड टू सिटी फॉर माय एजुकेशन, माय हाँ, कॉलेज एजुकेशन। तो मुझे ऐसा लगता था कि पापा पे बर्डन नहीं डालना चाहिए हर चीज का। लेट मी टेक इट, अगर मेरे एम्बिशन है तो मुझे स्ट्रगल करना चाहिए, मतलब मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि लाइक उसमें पहले ट्यूशंस पढ़ा के, अब मैट के लिए मैं प्रिपरेशन करने में बहुत पैसा लगता है, मतलब कोचिंग्स वगैरह कैट और मैट की जो होती है। तो मेरे फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स के थ्रू मैं सारे सब्जेक्ट सबकी इंफॉर्मेशन लेती थी। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे थे। तो उनकी वजह से मुझे कैट मैट का सब कुछ पता चलता था। और व्हाट आई डिड कि मैं वही सब्जेक्ट्स को छोटे बच्चों को, यानी 10th 11th के बच्चों को ट्यूशंस देती थी। तो उसके थ्रू मैंने कैट मैट का प्रिपरेशन किया इस तरह से। okay, अब कैट मैट का प्रिपरेशन भी हो जाता है, तो उसके बाद में चैलेंज आता है कि कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन के लिए आपको जीडीपीआई क्लियर करना पड़ता है, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो देर इज अ 2-वे प्रोसेस। तो उस टाइम पे ये 2-वे प्रोसेस था ही। कैट मैट में मेरी रैंक आ गई थी कि कॉलेजेस कॉल कर रहे थे। और हाँ, कॉल करने के बाद में ये था कि लाइक मेरे, मतलब मेरी फैमिली को ये नहीं पता था कि शी विल परस्यू मास्टर्स एज वेल। ग्रेजुएशन तक दे वर हैप्पी कि हाँ ठीक है भाई, गुड। नाउ योर एज इज फॉर मैरिड, गेट मैरी नाउ। तो उन्होंने, उनका उनका वो था और मेरा कुछ और था। तो अब एमबीए के लिए मतलब आज मुझे समझ आती, पहले नहीं थी। बट मुझे लगा कि पापा मुझे लेके तो गए एमबीए के लिए। पापा को, मतलब पापा गॉट सरप्राइज। अच्छा, जीडीपीआई की प्रिपरेशन के लिए मैंने इंग्लिश पढ़ाना लोगों को चालू किया, स्टूडेंट्स को फ्री में, कि आप इंग्लिश मुझसे पढ़ो फ्री में। तो आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश। मैंने उस तरह से इंग्लिश बोलना सीखा। तो जीडीपीआई की प्रिपरेशन वैसी हुई। तो मेरे फादर को ये सब कोचिंग ट्यूशन पता था कि ट्यूशन लेती है, बट एज सच नहीं पता था कि क्या क्या पढ़ाती है, क्या करती है। तो लाइक फादर को पता ही नहीं था। उनको लगा कि एग्जाम क्लियर हो गया है, चलो इसने सेंटर ही दिल्ली चूज किया है, तो एक बार जाएगी, सिलेक्शन तो होना नहीं है ना, तो वापस आ जाएंगे। मतलब एक बार होता है ना कि इसकी भी खुशी रह जाएगी और हम भी खुश, ऐसे वाला, है ना? तो इसलिए हम लोग गए थे कि घूम के आ जाते, जैसे पिकनिक होती है या एक टूर होता है दिल्ली के लिए, तो वैसे गए थे। और 3 दिन में, आई गेस 3 दिन में 6 और समथिंग मैंने जीडीपीआई दिए, हर दिन के 2, मतलब एवरी डे 2 जीडीपीआई। हम लोगों ने 3 दिन तक 6 जीडीपीआई दिए, और उसमें आई थिंक 4 में या 5 में मेरा सिलेक्शन हो गया था, एक को छोड़ के। एक बहुत ही बेकार हुआ था, मतलब मैं खुद ही बिल्कुल बहुत ही बेकार हुआ था मेरा। बाकी उन 5 में मेरा सिलेक्शन हो गया। माय फादर गॉट अगेन, उनके पास फिर से कॉल आने लगे कॉलेजेस से। कॉलेजेस, बिकॉज आई वॉज अ राजस्थानी गर्ल और मेरे यहाँ पे एजुकेशन प्रिफर्ड नहीं की जाती है, इसलिए आई थिंक, इसलिए, बट दे वर ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स।
आई डोंट नो हम्म व्हाई दे वर, मतलब मैं कोई इतना ब्राइट स्टूडेंट तो थी नहीं कि वो स्कॉलरशिप मुझे हम्म ऑफर करे, बट दे ऑफर्ड। तो उनमें से 2 कॉलेजेस ने स्कॉलरशिप भी ऑफर किया, बट माय फादर वाज लाइक कि अरे ये क्या हो गया, मतलब ये तो सारी चीजें उल्टी हो गई। नाउ दे आर हाँ ऑफरिंग स्कॉलरशिप एज वेल। तो अब तो पूरी फैमिली अगेंस्ट कि नहीं। हाँ 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 और दिल्ली तो बिल्कुल नहीं। हाँ दिल्ली कितना बड़ा सिटी है, और हाँ हमारे जो फादर मदर के जो वो होते हैं फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स जो सब होते हैं, उन लोगों ने और बोल दिया लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं यहाँ के, ऐसे वैसे लोग। आज उन्हीं के हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं मेट्रोज में, बट उन्होंने हाँ ऐसा ऐसा बोला। अब इसकी वजह से मम्मी पापा जो थोड़ा बहुत भी मैं कन्विंस करती थी वो नहीं हो पाया। हाँ सारे एडमिशन क्लोज, खत्म, मतलब सबकी सीट्स फुल हो गई। हाँ रो मेरे पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ अब मैं रोते रोते लाइक कुछ सेकंड वे और क्या हो सकता है। तो माय फादर सेड कि तुम जयपुर में, मतलब हमारे वहां पे रिलेटिव्स रहते हैं ना, इसलिए तुम वहां से किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कर लो। हाँ तो हाँ मैंने हाँ कहा मैं क्यों करूंगी, जो मुझे हाँ स्कॉलरशिप दे रहे थे मैं उनके पास करूंगी। और सेकेंडली मेरा ड्रीम है सीईओ, टू बी द हाँ सीईओ। वो मुझे हाँ पता था, वो उन्हें नहीं पता था। बट माय हाँ ड्रीम इज समथिंग एल्स। मैं करूंगी तो मेट्रो सिटी से करूंगी, अदरवाइज मैं घर से ही डिस्टेंस एमबीए करूंगी। तो दिस इज हाँ व्हाट आई फाइनलाइज फॉर मी, हाँ कि नहीं नहीं घर से ही करेंगे, जॉब करेंगे, पार्ट टाइम एमबीए करेंगे, और इस तरह से अपना एक्सपीरियंस गेन करेंगे, और धीरे धीरे जब होगा तब होगा, मतलब अब हाँ लाइफ ने यही ऑप्शन दिया है, क्या करें। सडनली मेरे पास पापा के पास एक कॉल आया, एक एक कोई प्राइवेट थर्ड क्लास, आई वुड से थर्ड क्लास कॉलेज का कॉल आया पापा के पास, जिनके यहाँ 2 सीट्स खाली थी, हाँ और उसकी ब्रांच जयपुर में भी थी और दिल्ली में भी थी। ओके ओके हाँ, मतलब डेस्टिनी वांट समथिंग एल्स फॉर मी, दो इट वाज, मतलब नॉट अ गुड ऑप्शन, बट स्टिल डेस्टिनी वांट हाँ समथिंग एल्स। तो लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि पापा को लगा कि ये जयपुर में एडमिशन ले रहे हैं, और हाँ सीट्स थी दिल्ली के लिए। हाँ 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 तो उन्होंने एडमिशन करवा दिया मेरा, हाँ और मुझे सीट मिल गई दिल्ली की। तो अब पापा के पास ऑप्शन नहीं था, बिकॉज पापा ने एजुकेशन लोन लिया था। हाँ क्विट करने का ऑप्शन था नहीं। ऑप्शन नहीं है जी हाँ तो इसलिए मेरी मतलब एमबीए हुई फाइनली। तो एमबीए के लिए मैं फाइनली दिल्ली चली गई। So tell me about your corporate journey, like from where you started your career, from which company, and from there, how did you end up starting off your own? किस्मत हमेशा से मेरे लिए अप एंड डाउन ऐसे ऐसे ही रही है, मतलब कभी भी उन्होंने स्मूथ जर्नी नहीं दी है। बट आई लव चैलेंजेस नाउ। आदत हो गई है। करेक्ट तो अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि घर जाके, अगर मैं घर गई तो इट वाज लाइक कि शादी करो और हो गया। अब तो मतलब पूरे घर वाले भर चुके थे ना कि एमबीए करो और हाँ शादी खत्म कराओ करो इसकी, बात पहले से खत्म करो रिश्ते। पहले हाँ, बस बहुत हो गया, मतलब हम्म खानदान में सबसे बड़ी लड़की है ये जो अनमैरिड है, ऐसे वाला टैग लग हम्म गया था। तो हम्म अब एमबीए, जैसे ही एमबीए खत्म हुआ, इट वाज 2009। जो ओके 2009 का जो रिसेशन था, दैट हिट्स ओ एट द राइट टाइम ऑफ राइट प्लेसमेंट। सो राइट मेरी मेरी जो इंटर्नशिप थी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की गोपाल दास बिल्डिंग कनॉट प्लेस में हुई। दिस इज द हाँ टॉप वन नॉच, हाँ जिसको हाँ मतलब हाँ हाँ एवरीबडी वाज ड्रीमिंग अबाउट दैट हाँ इंटर्नशिप, और मेरी ऐसी जगह पे इंटर्नशिप हुई, इट वाज हाँ वंडर्स। आई लर्नड अ लॉट इन रिलायंस इंडस्ट्रीज एट दैट टाइम, हाँ 2007 7 और 8। तो उस टाइम पे वो चीज इतनी अच्छी हुई थी, और हम्म, उस टाइम पे एसएपी लॉन्च हुआ था इंडिया में फर्स्ट टाइम। हाँ तो हम लोगों हाँ ने एसएपी टच किया था, मतलब कि एसएपी को देखा कि ऐसे वर्क करता है। हाँ तो हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था, और सडनली 2009 प्लेसमेंट के टाइम पे आ गया रिसेशन। हाँ एंड इट वाज लाइक, अब तो कॉलेज में जो बची कुची कंपनीज थी वो भी नहीं आ रही थी, मतलब हाँ इंश्योरेंस वाली जो कंपनीज होती है हाँ और रियल हाँ हाँ एस्टेट की होती है वो भी राइट नहीं राइट आ रही थी। हम्म तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि वापस घर जाऊं, क्योंकि वहां पे तो शादी के लिए
लड़का बैठा ही है ऐसा लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा जाना ही नहीं है, कुछ भी करो सर्वाइव करो यहाँ पे। तो आई वर्कड इन फ्यू ऑफ द वेरी डोमेस्टिक कंपनी जो फ्लैट में नहीं चलती है, फ्लैट्स में, दिल्ली के डीडीए फ्लैट्स में जो ऑफिसेज होते हैं। तो आई वर्कड इन दैट कि एक एक महीना 2-2 महीना जो भी काम किया मैं करके और छोड़ देती थी। मैंने कहा कि नहीं, उनको परमानेंट ना लगे, इसलिए मैं चेंज करती रहती थी कि मैं यहाँ पे नहीं वर्क कर सकती हूँ। तो मैं चेंज करती रहती थी हर 2 महीने में, 1-2 महीने में। तो 3 और आई थिंक 4 या 5 मंथ्स के अंदर अंदर आई वाज सेलेक्टेड और कंटिन्यू मेरे इंटरव्यूज चलते थे, कंटिन्यू इंटरव्यूज में देती थी। After almost 5 months, approximately 5 months or 6 months, I got selected into this Sinochem India. That's a multinational company, and वो 75th position पे थी in Forbes at that time. So it was like, yeah, और selection होने के बाद में इट वॉज लाइक वंडर्स। मैं ऑफिस, और मेरे घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा ऑफिस, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस। मतलब आई यूज टू स्टे इन सरिता विहार, दैट इज देयर इन दिल्ली, साउथ दिल्ली। और जसोला पास में ही जो जसोला इंडस्ट्रियल एरिया है उसी में, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस, इट विल टेक बाय वॉक इट विल टेक 10 मिनट्स। तो मेरा ऑफिस, और वो भी बड़ी सी बिल्डिंग में है। तो किसी को यकीन ही नहीं होता था आई गॉट सेलेक्टेड देयर। मेरे मम्मी पापा वेरिफिकेशन के लिए आए, वहां पे ऑफिस जाके मिल के आए। सही में इधर है कि ये क्या ऐसे बहाना है करके। दैट्स ट्रू। मेरे जो मतलब जो कंट्री हेड्स थे, उनके साथ बैठे हुए थे मेरे मम्मी पापा। एंड आई जस्ट गॉट सेलेक्टेड, मीन्स अभी तो मुझे शायद 15 डेज ही नहीं हुए थे ज्वाइनिंग किए हुए। तो एंड adding to this point, I just wanted to thank my those who were there, the leadership. They all are still in touch with me. Sanjay sir, Sanjay Chaudhary sir, he's still in touch with me, and he's my motivator as well right now. And Anuradha ma'am, she was my, under whom I was working. So she's also in Pune, and we are still in touch. And Pran sir, he was wonders. He was a wonderful person, but we are not in touch right now. तो ऐसे करके तीनों लोगों से मैं इतने अच्छे से, मतलब इट वाज वंडरफुल जर्नी, मतलब वहां पे रहना, वहां पे काम करना। और एंड जब मेरा ऑनबोर्डिंग हुआ था उस कंपनी में, ऑनबोर्डिंग हुआ था, तो लाइक IBM से भी अच्छा हुआ था। Like when I entered the room, the directors were sitting on the round table, and आपकी चारों तरफ स्क्रीन्स लगी हुई है, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई है, और उनपे मल्टीनेशनल पीपल, दे आर वॉचिंग यू एंड दे आर वेलकमिंग यू एक्चुअली। तो आई वाज लाइक, इधर देखो उधर देखो, कहाँ देखो, किसको हेलो बोलना है, क्या करना है। मैं तो बिल्कुल फ्रेशर थी ना, तो आई गॉट शॉक कि ऐसा भी होता है। और then they asked me to introduce yourself. I introduced myself at that time, and then they clapped for me, and it was wonder. It was wonder. For me, it was like exposure to the corporate world. Like corporate world is actually welcoming me. मुझे ऐसा फील हुआ कि चलो let's explore this world. This is where I belong to करके ऐसा फील हुआ आपको? हाँ, मुझे लगा कि इतना ओवरवेलमिंग, इतना डिफरेंट, आई नीड टू लर्न दिस थिंग, मीन्स इन फॉर मी इट इज गुड। तो देन आफ्टर दैट, लाइक व्हाइल वर्किंग इन साइनोकेम, तो थोड़े से कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होने की वजह से, बिकॉज उस टाइम पे रिसेशन में जॉब मिलना तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब तो होगी होगी। एंड वी हैड अ मेजर एक्सीडेंट, मतलब मी एंड माय फैमिली। Okay. So because of that, I discontinued with that company and I joined a
डोमेस्टिक कंपनी वंस आई रिकवर्ड फ्रॉम दैट। तो उस समय लाइक मेजर एक्सीडेंट होता है ना, तो आप उस संतुलन में नहीं होते हो कि आप बहुत अच्छा काम कर सको। तो दैट डोमेस्टिक कंपनी आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 1 year आई गेस अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद में आई अगेन ट्राइड, मीन्स वंस आई गेट इनटू माय पिक्चर कि नहीं अब मैं वापस आ चुकी हूँ, then I started giving this interviews and their interviews, मतलब this and there I started and I got selection in IBM। IBM भी जहाँ पे मैं सेक्टर 40 गुड़गांव में रहती थी, मेरे बिल्कुल मतलब मैं अपनी खिड़की से IBM का ऑफिस देखती थी। तो बहुत मस्त है आपका ये अपॉर्चुनिटीज जो भी आपको मिले, बहुत क्या बोलते हैं ये उसको, रिजल्ट है, चूज ये करके रिजल्ट है। मिले हैं। हाँ। हाँ, मतलब मुझ अ, मतलब आई बिलीव कि जब आप कर्मा बहुत अच्छे से करते हो ना, मतलब आप शिद्दत से करते हो, तो आपको मिलता भी कुछ ऐसा ही है। मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं जॉब्स को एक्चुअली एक दिन में 3 इंटरव्यूज दे रही थी मैं, यू वोंट बिलीव इट। एक दिन में 3 इंटरव्यूज दे रही थी उस टाइम पे कि नहीं आई वांट टू गेट इनटू सम गुड कंपनीज। और उस टाइम पे मेरे पे शादी का प्रेशर ऐसा था कि मेरे घर वाले पूरे ना, मतलब अंधा लूला लंगड़ा जो होता है गंजा, किसी से भी करवाने को रेडी थे। तो फुल उस वो समय लोग पूरा ये एग्रेसिव हो गए थे, मतलब डेस्परेट हो गए एग्रेसिव, थे कि अब खत्म होना वेरी है काम। डेस्परेट, वेरी एग्रेसिव। हम्म, तो उस हम्म, टाइम पे इसी चक्कर में मैं उस कंपनी से मैं मतलब इसीलिए IBM मिली शायद मुझे। हाँ, एंड okay, अच्छा, इस टाइम पे समथिंग समथिंग ट्विस्ट हैपेंड। लाइक मैं जो डोमेस्टिक कंपनी है उसको मुझे छोड़ के जाना था। मतलब माय फैमिली वाज लाइक हमारे यहाँ पे जो भी रिश्ते आ रहे थे, तो मेरा कोई लव मैरिज जैसा सीन था नहीं कभी भी। मतलब आई आई नेवर थॉट इन दैट वे कि लव मैरिज हाँ, होगी मेरी। तो हाँ, होनी तो अरेंज ही है अल्टीमेटली। हाँ, तो हाँ, फाइनली लाइक सब लोग बहुत एग्रेसिव थे, मैंने जॉब छोड़ी। मैंने कहा नहीं, हाँ, क्योंकि वहां पे मेरे लिए रिश्ते ही नहीं मिल रहे थे। अब लड़के ओके, मना कर रहे थे कि एक तो एज, एक उतना एक्सपीरियंस वाली लड़की, है ना। तो उनको और जॉब करने वाली करियर तो ओरिएंटेड बिल्कुल लड़की नहीं चाहिए चाहिए। ही नहीं। हाँ, मतलब साफ लोग नो कर रहे थे मेरे मेरे प्रपोजल हाँ, पे। तो मुझे लगा कि लाइक जॉब शादी तो अरेंज ही करनी है, कोई लव मैरिज जैसा सीन है नहीं, तो जॉब हाँ, छोड़नी ही पड़ेगी, लेट्स क्विट। और मेरे पापा लाइक ही वाज नेगोशिएटिंग विद मी कि बेटा देखो, जब शादी होगी ना हाँ, तो अपना रास्ता खुद बना लेना बाद में, ऐसे छोड़ दो। हम्म, हम्म, पेरेंट्स ऐसा करते हैं, हमारे इंडियन पेरेंट्स, यू नो। करेक्ट, करेक्ट। वो अपने तो फायदे के लिए बहुत सारी चीजें हम लोगों पे इम्पोज कर देते बहुत, हैं। वो एक स्टोरी दैट्स है, ट्रू। मी एंड माय वाइफ ऑलवेज डिस्कस दिस। शी टेल्स मी हाँ, अबाउट हर स्टोरीज और द वे शी लड़कियों वाज को बीन तो ट्रीटेड। नेगोशिएशन ऐसा देते हैं ना, मतलब They will not be in a situation to neither say yes to what they are asking us to do, nor to say एब्सोल्युटली, no because I do not like it, like doing it. So in that way, you do not neither say yes, neither say no. बस वो हो मतलब जाता है, इधर वो कुआं इधर काम आगे खाई। बात आ जाती है। हाँ, my wife always tells me about all these things, कैसा होता है आपको नहीं पता है, बैठो मैं सुनाती हूँ करके, ऐसा Yeah, मेरे को सुना means के देते हैं वो। this is actually traumatic. This is हाँ, actually, मतलब for every girl who is passing through this हाँ, arranged marriage वाला जो सीन होता है, it is हाँ, actually, मतलब ये बहुत ट्रॉमेटिक होता है क्योंकि बॉयज की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। हाँ, उनको एक ओपन माइंडेड गर्ल चाहिए बात करने में, लेकिन हाँ, रियल लाइफ में उनके पेरेंट्स को नहीं चाहिए। हाँ, उनको चाहिए करेक्ट, ट्रेडिशनल, करियर हम्म, ओरिएंटेड। लड़के को नहीं चाहिए, हम्म, है ना। लड़की को करेक्ट, घर में नहीं बैठना, हम्म, उसको करेक्ट, करेक्ट, वो टीवी सीरियल्स नहीं देखने। नहीं तो देखना। तो दिस इज अ वेरी वेरी वेरी, मतलब हम कभी और इस टॉपिक पे बात करेंगे, बट Fun, इट इज अ वेरी yeah, I ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। got your gist what you're trying to tell. The whole aura about what things happen around you that I have understood. So here I व्हाई would आई like से to, दिस, tell me, please tell me, सो tell me. व्हाई आई से दिस इज बिकॉज मैं अपना घर एक्चुअली छोड़ के निकली थी। मैंने कहा नहीं, मैं इस एक्सपीरियंस को नहीं
मैं किसी से भी अंधे लूले लंगड़े लड़के से शादी नहीं कर सकती, और दे वर फोर्सिंग मी कि नहीं, इसमें क्या बुराई है। अगर मैं गंजे को गंजा कह रही हूँ यार, क्या प्रॉब्लम है? मैं बस बोल रही हूँ आप सच बोलो। अगर आपके हेयर नहीं है, इफ यू आर फैट, इफ यू आर ब्लैक, इफ यू आर फेयर, इफ यू डोंट, इफ मतलब आपकी सर्जरी हो रही है बालों की, तो आप बस बोल दो ना, दैट्स फाइन। इट शुड बी रियल, राइट? इट शुड बी क्लियर ट्रूथ। होना चाहिए। तो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सच तो बोलो। और उसको ऐसे सब लड़कों छुपा के के साथ वो आप, लोग पूरा वो सारी हाँ, चीजें छुपा के एक अलग ही पर्सपेक्टिव क्रिएट एग्जैक्टली। करते हैं, बट तो आई रियलिटी एम कुछ दैट, और रहती है। मैं ऐसी पर्सन हूँ, मैं फाइंड आउट कर ही लेती हूँ, 10-15 दिन बात करूंगी, मुझे पता चल हाँ, जाएगा सामने वाले के बारे में। एंड आई करेक्ट हैव करेक्ट। एक्सपीरियंस, राइट? मीन्स इतने टाइम से मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, दैट एक्सपीरियंस इज देयर। तो मैं उनको पहचान जाती थी, और मेरी फैमिली कहती थी इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसा तो होता ही है, ये होता है, वो होता है नॉर्मली। तो आई जस्ट लेफ्ट माई हाउस एक्चुअली। और इस टाइम पे, लाइक, आई वॉज एनकरेज्ड बाय माई हस्बैंड। सो हुआ क्या था कि हम लोगों का अरेंज मैरिज वाला सीन था। तो मैंने कहा कि जब आपको शादी करवानी है तो आप शादी.com, मैट्रिमोनियल सब पे डाल दो ऐड। लेकिन अगेन उनकी सिचुएशन कि हमारी कास्ट में होना चाहिए, वो डालो, वो डालो, तो नहीं होगी। मैंने कहा जिंदगी भर नहीं होगी, फिर आप मेरे को ब्लेम करोगे। आई शुडंट बी ब्लेम्ड। और मैं अब घर पे इतने टाइम तक ऐसे इस तरह से नहीं बैठ सकती, तो आप एटलीस्ट ब्राह्मण्स में तो देख लो। बट अगेन वो लोग रिश्ते आते थे, मम्मी पापा रिजेक्ट रिजेक्ट में डाल देते थे कि नहीं, हमारी कास्ट का नहीं है, हमसे ऐसा है, हमसे वैसा है, ऐसे करके। एंड मीन्स एवरीबडीज स्टोरी, इट्स लाइक हुआ लास्ट में माय मतलब वशु वाज द, मतलब माय हस्बैंड दीपक वशिष्ठ। So it was a rejected proposal on shadi.com by my father. ओके, तो उनके साथ में नंबर शेयर हो गया था, बट इट वॉज रिजेक्टेड काइंड ऑफ थिंग। तो हम लोग एज अ फ्रेंड्स बात करने लग गए थे कि हाँ चलो। तो आई वॉज शेयरिंग कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, कि कैसे कैसे रिश्ते आ रहे हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये किया, उसने वो किया था। मतलब एक रियल टाइम जो होता है ना, कि मैं स्टोरीज बता रही थी ऑलरेडी कि इसने ये ऐसा है, मैं कैसे करूं। ही सेड कि लाइक, श्रुति सी, यू डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस, गो एंड गेट अ जॉब। So that time you were not दो working, वर्ड्स, you were at home. At this point of time, you were not working. नो आई वॉज नॉट वर्किंग। आई लेफ्ट ऑलमोस्ट 1 month बैक। आई लेफ्ट द कंपनी एंड आई वॉज सिटिंग एट होम की लाइक, जॉब तो करनी ही नहीं है, क्योंकि जब तक शादी नहीं होती है। तो आई वॉज रेडी फॉर दैट। तो ऑलमोस्ट इसको 2 महीने, 2-2.5 महीने होने वाले थे शायद, आई गेस, एज प्रोसीजर को। देन माई हस्बैंड सेड कि नहीं, गो एंड गेट अ जॉब, यू बिलोंग टू दैट प्लेस, व्हाट आर यू डूइंग हियर, एवरी डे इट इज अ हसल लाइक दिस। तो ये तो दिमाग में था ही कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो एक हिट कर गया। एंड द मोमेंट दे स्क्रूड मी अप कि शादी कर लो इसी लड़के से, ही इज द बेस्ट पर्सन फॉर यू, मैंने कहा नहीं, आई वेंट आउट। और उसके बाद में, एज आई सेड कि मैं एक दिन में 3 इंटरव्यूज दे रही थी। तो आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज। वो वाली जो पुरानी कंपनी थी, मैं वहां पे जा सकती थी, और दे वर रेडी टू बोर्ड मी अगेन। बट मुझे कुछ वो होता है ना कि आप सेम कंपनी में सेम पोजीशन पे वापस जाओगे, ट्राई अनदर थिंग। तो मेरे पास वो ऑप्शन तो ऑलरेडी ओपन था। तो आई सेड कि लाइक 2 महीने का टाइम लेते हैं, लेट्स डू इट। ट्राई किया, एंड आई भी मतलब कितने दिनों में, हाँ, द लास्ट डे, मतलब मैं क्विट कर चुकी थी कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और माय फादर, मदर, एवरीबडी वाज टेलिंग मी कि नहीं हो पाएगा बेटा, आ जाओ घर पे।
और मेट्रो स्टेशन पे लिटरली मैं बैठ के रो रही थी, नीचे बैठ के रो रही थी, कंटिन्यू रोए जा रही थी। और IBM से कॉल आया, और एंड वैशाली ने व्हेन शी कॉल्ड मी, वो बोलती, श्रुति आई एम सो सॉरी, बहुत लेट हो गया है तुम्हें कॉल करना, मैं पिछले 2-4 दिन से कंटिन्यू सोच रही थी लेकिन तुम्हें कॉल नहीं कर पा रही। और लास्ट मोमेंट पे ये कॉल आ गई। So one important or point which I felt like which is very new here in as far as whatever you are doing about your company, where you have mentioned something that you can start without a roadmap, right? I'm very curious to know about what it is. And before that, just tell me what is your current company you're working for, like what your company does, about your company and what services you guys provide, and put light on what is this you can start without roadmap. Let's take one by one what my company is doing right now. So my company is Strange Aurora, and it is basically working on 3 things. Like, we are educating people, we are empowering people, and we are promoting entrepreneurship. So these 3 things we are doing. And our target audience right now is youth of the country. So through counseling, we have started this work. Like, we are counseling students. We think like students means student need to be here first. What is there in their mind? So counseling के through, we are trying to connect students with Strange Aurora, and after that, we are counseling not just in a personal terms. We will be providing them all the counseling related to subjects, choosing the right subject, choosing the right path suitable for them, which makes them happy, like career path creation. This is something new. Okay. Then third is, like, if a person want to be an employee or an employer, as I chose to be an employee at that time, as per my situation. So choose to be an employee or an employer. We are there to help you in all the careers, like choosing the right subject, to the vision, what you want to be, like your dream. Then third thing is, like, if you want to be an employee, आपको जॉब्स कहाँ मिलेगी, आपके लिए जॉब्स किस कंपनी में है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, IBM में एक्सेल बेस्ड जॉब्स बहुत सारी है. एक्सेल मतलब अगर आपका एक्सेल बहुत अच्छा है, ठीक है, तो IBM मतलब आप एक नॉर्मल फ्रेशर को, ग्रेजुएट को या बीकॉम ग्रेजुएट को, अगर आपका एक्सेल आउट ऑफ 10 अगर आप अपने आप को 5 भी रेट करते हो, तो यू आर गुड इन टू एक्सेल, एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस मोर देन 60-70 है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेल. तो आप एक्सेल पे तो काम आप मतलब लाइक स्कूलिंग से भी कर सकते हो ना, करेक्ट. तो ये स्किल बेस्ड जॉब्स हो गई, कहाँ मिलेगी, आप में क्या क्वालिटी है, क्या स्किल्स है, और किसके बेसिस पे कहाँ, मतलब मल्टीनेशनल्स हैं, कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है आपको. आपके घर के आसपास भी हो सकती है जॉब्स, आपको पता ही नहीं है. तो इस तरह की. और अगर एंटरप्रेन्योरशिप आप चूज करते हो, लाइक टू बी एन एम्प्लॉयर अगर आप चूज करते हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे पास पूरा एक नेटवर्क है, वेयर वी सपोर्ट ईच एंड एवरी फ्रॉम द बिगिनिंग. वी गाइड यू कि एक एम्प्लॉयर कैसा होता है, मतलब कैसा होना चाहिए. जस्ट लाइक अगर आप कंपनी के बारे में आप सुनो, तो टाटा नमक हम इतने सालों से सुन रहे हैं. कंपनी इज नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट. टाटा नमक बहुत बहुत प्रॉफिट नहीं कर रहा है, राइट, लेकिन इट इज फॉर मोर देन 70 years, आई गेस नाउ इट इज लाइक मे बी 100 और समथिंग लाइक दैट. बट द पॉइंट इज कि टाटा नमक तब से लेके अब तक आ रहा है. तो कंपनीज कैसी बननी चाहिए जो 100 years तक रहे. आप रहो ना रहो, कंपनी रहनी चाहिए. तो एम्प्लॉयर का वो विजन होना चाहिए कि कम से कम 10-20 साल आगे का विजन होना चाहिए.
तो ये हाँ। सारी चीजें हम इनकलकेट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। तो हम स्कूलिंग में ही बच्चों को सब्जेक्ट से रिलेटेड काउंसलिंग देते हैं, देन करियर पाथ क्रिएशन में हेल्प करते हैं, देन हाँ। उसके साथ में आपका एम्प्लॉय चूज करना है या एम्प्लॉयर, दोनों में हम हाँ। हेल्प करेंगे। एंड आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स, हाँ। तो हमारे पास काउंसलर्स है, नेटवर्क ऑफ काउंसलर्स हाँ। हाँ। फॉर हाँ। एवरीथिंग। देन हाँ। उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप हमारे पास है। हाँ। एंड ये सब चीजें होने के बावजूद हमारे पास, हम पर्सनल काउंसलिंग को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो हाँ। चाहे इमोशनल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे आपका हैरेसमेंट से रिलेटेड, एडोलसेंस से रिलेटेड हो, एजुकेशन वाइज, तो हम हाँ। हर चीज में आपको राइट काउंसलर तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। How are you reaching these young people, or young people are reaching to you? What are your sources? Like, where do you get these people from? So in the last 3-4 years, what we have created, we were generating internships. So internships के through we connected with many colleges, like DU के हमारे पास बहुत सारे colleges हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, you must be knowing. So दिल्ली यूनिवर्सिटी के कम से कम 5 to 7 colleges हमारे साथ connected हैं। तो द पॉइंट इज कि हमने ऑलरेडी वो थ्रू इंटर्नशिप हमने बहुत सारे, हमने 350 कॉलेजेस का एक ऑलरेडी ऑन बोर्ड कर लिया है। और उसके थ्रू, इंटर्नशिप के थ्रू, लाइक थ्रू स्टूडेंट इटसेल्फ वी कनेक्टेड विद colleges, and colleges are connecting us to the students. It's like give and take चल रहा है। The other way around, the people who are when you ask questions and they are happy with your answers, right? Why is that they are that way? Like उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो लोग उतना satisfying feel कर रहे हैं, तो they know how to take their career ahead? What is their story in that case? So actually counseling is very personal thing. Every student had a different stories. And हम उनको सबसे पहली चीज है कि ये एक प्राइवेसी मैटर होता है, वी कैन नॉट शेयर द स्टोरी ऑफ दोस्त, बट इन जनरल टर्म्स हम लोगों ने जो बात किया, लाइक पेरेंट्स इस तरह से बच्चों को कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं जिसकी वजह से बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लग्जरी के थ्रू अपने बच्चों को ट्रैप कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और कुछ जो लो लेवल के हैं, मतलब जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस चीज को इस तरह से बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए इतना कमा रहे हैं, इतने एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो 1 रुपए की चीज भी वो उस चीज के लिए वो बोल नहीं पा रहे। तो इट इज बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, द सेंटेंसेस दे आर यूजिंग टू द स्टूडेंट्स, मतलब टू देयर किड्स। ओके। और जो बाकी के 10-20 स्टूडेंट्स थे, उनके साथ एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो था। उनके साथ क्या था कि लाइक उनको पता ही नहीं है कि दर्द तो हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसको नेक बोलते हैं। उनके पास वोकैबुलरी नहीं है। उनको पता नहीं है कि इसको, मतलब जो सर दुखता है उसको हेडेक कहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि अगर मुझे टेंशन हो रही है, या ये डिप्रेशन है या टेंशन है, या बस ऐसे ही, मतलब फ्रीक्वेंटली कोई मुझे बात चुभी और मैंने ऐसे लिया, उन्हें पता ही नहीं है, वोकैबुलरी नहीं पता। वो वोकैबुलरी नहीं पता तो वो डिफाइन कैसे करेंगे आप? So, as being a marketing person from last 10 years, who is into marketing, communication, social media, advertisements and all, whenever I talk to any companies, right, so I'm very curious to understand how these people, you guys are marketing your company now, because each company goes with different strategies, different executions, and they adapt a different style of putting across their company to their desired customers. So here, this can be a learning session for me also to understand how things are operating in today's time. So I would like to understand how you are marketing your product or services. What are your channels, and how much amount of efforts and time you're putting across to the marketing and the sales segment. आप उसके बारे में बताइए।
सो मार्केटिंग इज समथिंग लाइक, अभी तक मैंने जितना भी मार्केट किया है वो स्टूडेंट के थ्रू ही किया है, मतलब बिकॉज वी आर इनटू इंटर्नशिप, वी वर फोकसिंग ऑन दैट पार्ट। तो कंपनी का एक काइंड ऑफ अ ब्रांड नेम बन चुका है कि लाइक अगर मतलब स्कूल्स और कॉलेजेस में आप जाओ, कॉलेजेस में अगर आप जाओगे तो दे न्यू कि दैट स्ट्रेंज अरोरा एग्जिस्ट एंड दिस इज अ गुड कंपनी काइंड ऑफ थिंग। तो जो रेपुटेशन ब्रांड बिल्डिंग था वो थोड़ा कर लिया है हमने, बेस बना लिया है। तो दैट वी हैव डन इन दीज 3-4 years, and once now it is like my main focus is to get into the counseling. Like अभी तक क्या हो रहा था कि काउंसलिंग से बेनिफिट, हम लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे थे सारा, ठीक है। तो ऑनलाइन वर्क करने की वजह से क्या हो रहा था, एक्चुअली स्टूडेंट और मुझे, हम दोनों को बेनिफिट नहीं हो रहा था, मतलब इन टर्म्स ऑफ सेल्स, ठीक है। और स्टूडेंट को फायदा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ऑनलाइन में क्योंकि हम कॉलेज के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो ही इज नॉट दैट, ही और शी इज नॉट दैट वोकल इन फ्रंट ऑफ अदर्स, राइट। तो इसलिए एक्चुअल बेनिफिट किसी को नहीं हो रहा था, तो वी स्टॉप दैट। तो हमारा जो नेटवर्क था 350 कॉलेजेस का और अप्रोक्सीमेटली 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स गेट ऑन बोर्ड एंड दे न्यू अबाउट माय कंपनी एंड लाइक दैट, और उसको हमने रिम्बर्स एक्चुअली नहीं किया, तो इट इज अ बैड मार्केटिंग आई वुड से, कि हम लोगों ने उस चीज को रिम्बर्स नहीं किया। बट पॉइंट ये है कि लाइक माय फोकस इज टू डिलीवर माय थिंग फर्स्ट। इट शुड नॉट बी बिकॉज ऑफ लाइक बिजनेस कैसा हो रहा है, मतलब क्वालिटी का मार्केटिंग या फिर आपके रेवेन्यू जनरेशन से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्वालिटी शुड बी परफेक्ट एट एनी कॉस्ट, मतलब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, चाहे आपका रेवेन्यू जनरेशन ऊपर नीचे होता रहे। तो द पॉइंट इज कि हम मार्केटिंग करना चाहते हैं, हम उन स्टूडेंट्स को रिम्बर्स करना चाहते हैं जो हमसे कनेक्टेड रहे हैं, इन कॉलेजेस को हम रिम्बर्स करना चाहते हैं, बट we haven't got anything on board, something like, or a good proposal, I would say. Good proposal in terms like I check, I am a very in-depth person, you must be knowing now. So मुझे एक एक चीज की डिटेल चाहिए होती है कि आप मतलब अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग पे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे अगर मैंने एक क्या बोलते हैं उसे, पेड एड्स रन करवाए, तो इट इज लाइक अगर मैंने 1,000 रुपए लगाए, छोटा छोटा बात करते हैं, तो मुझे कम से कम 1,000 रुपए नहीं तो 500 रुपए तो मिलने चाहिए। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो मुझे करने का एक रीजन बताओ कि क्यों करूं मैं। और सीधे आप बात कर रहे हो कि 3 मंथ्स बाद में रिजल्ट आएगा, मैं कैसे आपके ऊपर बेट लगा सकती हूँ 10,000 रुपए, 10,000 मिनिमम बात कर रहे हैं कि 10,000 10,000 10,000। आपने 3 मंथ्स का मुझे प्लान बता दिया और आप बोल रहे हो मैं 30,000 रुपीज मैं तो आपको दे देती हूँ, लेकिन आप मुझे 3 महीने बाद में ही 30,000 रुपए कमा के दिखा दो। ये तो होना चाहिए ना कि आप कुछ तो मुझे दोगे तभी मैं आपके साथ में कनेक्ट कर पाऊंगी। तो अभी जैसे मैं आपको एक और भी मेरा खुद का एग्जांपल देती हूँ। आई कनेक्टेड विद मेनी पीपल अक्रॉस इंडिया, मतलब मैंने इतने लोगों से बात की है फॉर ईमेल मार्केटिंग। एज आई सेड, मेरी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा है मेरे पास, मतलब कॉलेज ने मुझे मेरे पास इतना डेटा है कि कॉलेजेस ने जो मुझे सेंड किया है, विच इज ऑथेंटिक डेटा। अब मैं आप मुझे अगर मुझे किसी ईमेल मार्केटिंग के लिए अप्रोच करोगे तो आपके दिमाग में पहले तो ये होना चाहिए ना कि इनके पास ऑलरेडी 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो आप मुझे प्रपोजल उसके हिसाब से दोगे ना, यस और नो, राइट। बट अभी तक मेरे पास अभी जोहो मेल, ठीक है, मेल चिम,
मतलब ये मैं आपको बहुत ही, मेरे लिए बिल्कुल भी मतलब सूटेबल नहीं, जिसे बोलते हैं 100% सूटेबल नहीं वाले ऑप्शंस थे ये, और पीपल आर कमिंग विद दैट ऑप्शन टू मी, मीन्स आफ्टर डिस्कसिंग एवरीथिंग दे आर कमिंग अप विद दैट ऑप्शन। और आप मेरी फ्रस्ट्रेशन उस टाइम पे, मैं उसको उस फ्रस्ट्रेशन को समझा नहीं सकती कि इनको मुझे मुंह पे बोलना है कि यार यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। The next thing is, as you told about your personal stories for your career, your school life, your marriage life, right? But the time you thought of starting of your own, Strange Aurora. So what was your situation? And I'm just curious now कि वहाँ पे इन्होंने कैसे मैनेज किया है? तो it was just an happy go कि आज शुरू बोला कि कल से शुरू हो गया, कि वहाँ पे भी कुछ ऐसा स्टोरी है जो that is worth listening. Just tell me about it. ओके, तो मैं ना एक चीज में बिलीव करती हूँ कि आपका जो कर्मा है ना, मतलब आपका कर्मों का घड़ा भर जाता है ना, तो जैसे एक फ्रूट होता है, फ्रूट पकता कब है, मतलब हम जब एक आम तोड़ते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना, उसमें धूप भी लगती है, उसमें पानी भी लगता है, उसमें सब कुछ लगता है, सब कुछ चाहिए। और जब वो फ्रूटफुल होता है, जब वो पकता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है एंड यू एंजॉय, है ना। तो मतलब मेरे अंदर जो सीईओ बनने का डेस्परेशन था, इट बिकम्स डेस्परेट, आई बिकम डेस्परेट बाय द टाइम, लाइक 10 years मैंने काम किया कॉर्पोरेट में, तो एट दैट टाइम इट वाज लाइक मुझसे रहा नहीं जा रहा था एज एन एम्प्लॉय, और मेरे चैलेंजेस हो रहे थे कि अंदर कुछ और है और ऊपर में एक मुखौटा चढ़ा के बैठी भी हूँ एज एन एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब मैं 10 साल काम कर चुकी हूँ, आई नो द प्रोटोकॉल्स एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट माय मैनेजर ऑफ कोर्स एंड द हायरार्की आल्सो, सब कुछ रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो लाइक आईबीएम छोड़ने का जो फैसला था वो ये था कि लाइक आई डोंट वांट टू वर्क बिकॉज आई एम अ ऑनेस्ट पर्सन। They were shocked. तो they were saying कि लाइक आप 3 महीने नोटिस पीरियड सर्व करो और फिर आप जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। आई सेड कि अब मेरे मैनेजर को दिक्कत होगी, मैं 3 महीने तक प्रिटेंड नहीं कर सकती, मैं 10-15 दिन, 1 महीना मैं अपने आप को फोर्स कर सकती हूँ, राइट, लेकिन मैं 3 महीने तक मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती और मैं अपने आप को फोर्स भी नहीं कर सकती, उसमें कम से कम 3 बार तो मिस्टेक होगी मुझसे, और आप लोग परेशान नहीं होगे, मेरा मैनेजर परेशान होगा। तो आप सी, मुझे सैलरी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट आई डोंट वॉन्ट टू वर्क, एंड दे वर शॉक्ड कि what she is talking about. And after that call, they all are connected with me, and they are still on LinkedIn with me, and they are watching my journey as well. So yeah, and they happily released me in 15 days after that call. That is just 15 days. because you were very honest about your situation and your feeling कि Yeah. बॉस में रहूंगी भी तो भी आपके लिए कोई फायदा नहीं है, मेरा तो नुकसान नहीं है, आपका भी डेफिनेटली इसमें नुकसान है। क्लियर इनफ। एंड और इसका जो ये इट इज लाइक मेरे हस्बैंड जो है वो सामने खड़े होके वो आंखें बिल्कुल ऐसी ब्रॉड करके कि ऐसी बातें कौन करता है वो भी टॉप मैनेजमेंट से। करेक्ट। तो जो मैंने आपको बताया ना कि फ्रूट जब मतलब जब पक जाता है तो वो फटने लगता है ना, तो जैसे अनार होता है तो वो फट जाता है तो हमें लगता है कि हाँ ये पक गया है ना, तो मेरा भी वही था। अभी मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है या नहीं, मतलब क्या करना है मुझे पता नहीं था। तो इस टाइम पे मैंने क्या करा, मुझे लगा कि आईबीएम छोड़ने का टाइम है, छोड़ दिया। आई एंजॉयड, 1 महीना मैंने फुल वेकेशंस ऑल ओवर इंडिया घूमी हुई और मैंने खूब एंजॉय किया। माय हस्बैंड सेड कि अब आजा घर में भाई, बहुत हो गया, ठीक है। तो आने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू डू, डू यू वांट टू सिट एट होम,
तो मैं थोड़ा सा जगल कर रही थी कि लाइक नहीं, मुझे जॉब तो नहीं करनी है, लेकिन करना क्या है वो भी नहीं पता था, क्लियर नहीं था। तो इस टाइम पे मैंने एक दो इंटरव्यूज दिए, जस्ट वांटेड टू चेक माई सेल्फ। तो naukri.com से 2-4 कॉल आए, एंड आई वाज लाइक, आई आस्क्ड दैट एचआर, आई एम सो सॉरी अगर कोई किसी एचआर को ऑफेंड हो तो, बट मैंने लिटरली उनसे पूछा कि व्हाट आर यू ऑफरिंग मी, प्लीज टेल मी एज पर माय एक्सपीरियंस, एज पर माय क्वालिफिकेशन, and how much hike you will give it to me. Please clear it to me fast, and then I will be ready for the interview. And she Fair was enough. shocked. Very decent question. It is fair, yes, it is, but it was too, and she was shocked, and she never called me back. And it goes on. I faced 3 interviews like that, and I thought, like, am I offending people? But they were like that. Like they were not clear. They wanted people who are desperate to work, desperate to get the job. I was not desperate to get the job. I wanted, what are you offering me? Tell me that. And then I realized I have a different sense of humor, which is not suitable for an employee. Means I cannot be suppressed by my managers. I cannot be, because I become a vocal person now. So Correct. at that time, I realized ki, let's do it. Like, my husband is settled. Like, he's working. He's like, he's handling all the expenses, like whatever we have. Then let's try this. तो फिर मेरे पास एक जैसे मैं डायरी लिखती हूँ, राइट, आई सेड फ्रॉम द चाइल्डहुड, तो जो डायरी में लिखा हुआ कंटेंट था, लाइक जब मैं आईबीएम में काम कर रही थी तो आई कनेक्टेड विद मेनी एनजीओस which is internationally. These NGOs are multinational NGOs. तो उन Okay. NGOs का काम देखकर मैं बहुत इम्प्रेस होती थी, क्योंकि वो IBM से कनेक्टेड थे, तो उनके CEOs वगैरह से कनेक्ट करती थी, एंड आई कनेक्टेड विद देम. I asked them how to start this NGO in India, why it is not working in India. तो पीटेक करके एक एनजीओ है. आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद दैट वर्क, देयर वर्क. उनके वर्क, मुझे लगता था कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू सॉल्व हो सकता है अगर ऐसे एनजीओ हमारे इंडिया में हो तो. स्किल बेस्ड जॉब देते हैं वो लोग बचपन से ही बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं उस टाइप से. तो देवर लाइक कि स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता है, देन उनको एक एक्स्ट्रा क्लास होती है जिसमें वो सारी टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मार्केट में है, उन टेक्नोलॉजीज पे वो ट्रेंड होते रहते हैं. मतलब दैट्स अ फ्री फॉर देम टू गेट ट्रेंड इन टू. जैसे हमारे बच्चों के अभी स्कूल में गेम्स पीरियड होता है, राइट, वैसे वहां पे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड पीरियड होता है. तो बच्चा ऑटोमेटिकली, दोज हु डोंट वांट टू गेट इनटू इट, दे क्विट, दे चेंज देयर स्कूल और कॉलेज. बट जो कंटिन्यू करना चाहते हैं उनको डायरेक्ट प्लेसमेंट आईबीएम और गूगल और ऐसी कंपनीज में मिल जाती है, क्योंकि वहां पे वही जॉब्स अवेलेबल है. तो बच्चे का मतलब अगर बच्चा वहां पे टिक के पढ़ रहा है, इट मींस उसका जो जॉब है, उसका करियर सेट है, एंड इट इज अ गुड वन. तो इसी तरह से एनजीओ से कनेक्ट होती गई, और यूथ के लिए काम करने के लिए एक वो पैशन क्रिएट हो गया. देन आई within like I left IBM in September or October, and then within 2 to 3 months I decided everything. जो डायरी में लिखा था ये सारी बातें, कि आई कनेक्टेड विद उनके साथ, लाइक राशिद के साथ. राशिद इज द सीईओ ऑफ दैट पीटेक एनजीओ. तो उनके साथ कनेक्ट होके जो स्टोरीज बनी थी सारी, वो स्टोरीज लिखने के बाद में, then I created Strange Aurora. Like we will create a loop जो हमारे यहाँ पे नहीं है, उसके लिए हम कुछ करेंगे जो इंडिया में नहीं है.
अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने का तरीका कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज अ वेरी बिग थिंग। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जब हम बचपन से ही बच्चों को वो क्लैरिटी दे कि वो व्हाट दे वांट टू बी, फिर उनको सपोर्ट सिस्टम दे कि फेल हो चाहे ट्राई करते रहो, व्हाट यू वांट टू बी। अगर प्लान ए से नहीं हो रहा, प्लान बी से करो, प्लान सी से करो, जिस चीज में आप लायक हो, वी आर देयर टू हेल्प यू। वो प्लान बी प्लान सी को एग्जीक्यूट करने में वी विल बी हेल्पिंग देम। तो इस तरह से आई क्रिएटेड दैट लूप होल का सोल्यूशन, जो हमारे इंडिया में वो लूप होल था, उसका सोल्यूशन आई क्रिएटेड इन दैट वे कि बचपन से ही एम्प्लॉय की क्लैरिटी दो कि जैसे मैं एम्प्लॉय में सूटेबल नहीं थी, बट आई वॉज, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन नहीं था। जैसे ही मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं मैं फट गया, मतलब मैं जैसे ही मैं फ्रूटफुल हुई, हाँ, आई एम डन विद दैट। और उसको आई yes, I wanted to be that employer. I wanted to start my company. So this is all the story behind like Strange Aurora, how it started. And there were many challenges. Like कंपनी तो आप स्टार्ट कर लेते हो, आपको लगता है कि लाइक आप रजिस्टर कर लो और क्या कॉपीराइट कर लो, ठीक है, आपको लगता है कि ये यही तो करना है और करना क्या है, आपने कर लिया। क्वेश्चन अभी नेक्स्ट यही था कि व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल स्टार्टिंग ऑफ योर कंपनी, बट जनरली व्हाट वी हैव दिस माइंडसेट इज रजिस्टर करना है, रजिस्टर करना है, रजिस्टर करना है, बस कंपनी रजिस्टर करना है। फर्स्ट 3 मंथ 6 मंथ से यही रहता है दिमाग में लोगों के। ट्रू। उसके बाद ऑपरेशनल सेटअप, वो सारी चीजों का पता भी नहीं रहता है कि करना रहता है। एग्जैक्टली, कुछ नहीं पता होता हमें। I being the first generation entrepreneur who started off on my own, I can totally relate कि first 6 years of my career as an entrepreneur, I do not consider itself कि मैंने उस टाइम पे कुछ खास काम ही नहीं किया। एक्चुअल मैंने काम अभी थोड़े सालों से करना स्टार्ट किया है, considering the structure and operation. This is the actual truth. This is the काफी सारे अभी ऐसे सारे एक्सप्लोरेशन कॉल्स में जब मैं लोगों से बात करता हूँ, तब वो बिना पूछे मेरे को चीज बता देते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है जो मैंने मिस किया है, करके ऐसा हो जाता है। सो दैट इज द लर्निंग। एंड एज फार एज यू टोल्ड राइट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो डिफरेंशिएशन आप करते हो, सो व्हाट इज देयर इन द एम्प्लॉयर्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स आते हैं या फिर यंग माइंड्स आपके पास आते हैं, तो उसका रेशियो कैसा है? कि बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि मैं एम्प्लॉयर ही बनना चाहता हूँ जनरली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली ऐसे सोचता था कि मेरे को किसी के अंडर काम नहीं करना है। उसके हिसाब से मैं ऐसा समझता हूँ कि सब लोग भी ऐसे ही करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक भी इंसान किसी के पास काम नहीं करना चाहिए। कोई भी बच्चा मेरे को, मेरे कजिन्स मिले या फिर कोई स्टूडेंट मिले, तो मैं उनको यही बोलता हूँ किसी के लिए काम मत कर, खुद कर। let me stop it. यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लोग सारे यही करना चाहते हैं कि देयर आर पीपल सेग्रीगेटेड? ये रेशियो क्या है? पॉइंट ये है कि व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड दिस व्हाट यू सेड। होता क्या है ना कि कोई भी चीज पहली बात तो छोटी नहीं होती। लाइक पानी बेचना भी, जो बच्चे पानी बेचते हैं, मुझे लगता है कि वो भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ट्रेन में जाते हैं या वहां ट्रैवल कर रहे होते हैं तो पानी इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। तो नथिंग इज स्मॉल और बिग। मुझे एम्प्लॉयर इज नॉट समथिंग वेरी बिग फॉर मी। जितनी रिक्वायरमेंट उसकी है उतनी ही रिक्वायरमेंट उसकी है, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंस में कोई समझौता नहीं होता, राइट। तो अगर एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो व्हाट विल यू डू? इट्स सिंपल लाइक दैट, राइट। एंड इसको मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, लाइक अ लाइफ साइकिल। अगर खरगोश नहीं होगा तो मतलब वॉल्फ क्या खाएगा? वॉल्फ मतलब द साइकिल। प्लांट्स नहीं होंगे तो शेर क्या खाएगा? लाइक दैट इट वर्क्स। मतलब इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो एम्प्लॉय हो, छोटे काम के लिए हो, बड़े काम के लिए हो, डजंट मैटर एट ऑल। एवरी वर्क इज इक्वली इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि बच्चे के पास पहली बात तो जब
9th-10th में जब वो सब्जेक्ट चूज करता है, ठीक है, हाँ दे आर नॉट दैट क्लेवर, और उन्हें नहीं पता होता कि क्या चूज करना चाहिए, ठीक है। पहले तो उनके लिए एक एसेंशियली क्लास होनी चाहिए जिनको जिसमें उसे इंटरेस्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी। आज आप हाँ एनवायरमेंट बचाओ बचाओ की बातें करते हो, रील्स शेयर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हाँ बच्चों को हाँ आपने ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस ही नहीं बताई क्लास हाँ हाँ 4, हाँ 5, 6, 7, 8 में। आपने बताया करेक्ट, नहीं कि ज्योग्राफी चूज करो। वो कितना कैसे इम्पोर्टेंट इक्वल, है। हम्म, इट इज वेरी हम्म, इंपॉर्टेंट। देन हम्म, सेकेंड, मैं आपको सिर्फ दो ही चीजों को मैं अभी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। वन इज ज्योग्राफी एंड सेकेंड इज इकोनॉमिक्स। यू आर टॉकिंग हम्म, अबाउट मनी 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 मनी, कमाओ, लेकिन आपको पता नहीं है कि इकोनॉमी चलती कैसे है। हम्म, आपको पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बीकॉम के बच्चे को बैलेंस शीट्स आती है, हाँ लेकिन जो साइंस के बच्चे हैं उनको बैलेंस शीट नहीं आती है। आप सैलरी स्लिप को समझने के लिए आपको बैलेंस शीट आनी चाहिए। करेक्ट आपको करेक्ट, अकाउंट्स के मतलब समझना चाहिए। डेबिट क्रेडिट समझ में आने चाहिए, अदरवाइज इट इज वेस्ट। तो आप मनी की हाँ बात कहाँ से कर रहे हो? मनी इज हाँ ऑल अबाउट रोटेशन ऑफ मनी इन इन द कंट्री। हाँ इंटरनेशनली तो अलग बात है ही, बट हाँ हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप इकोनॉमिक्स आप पढ़ा ही नहीं रहे हो बच्चों को, एक पतली सी हाँ बुक देके, और हाँ भूल जाते हैं बच्चे। इकोनॉमिक्स को हाँ पढ़ाओ, तभी तो बच्चा मनी के पीछे भाग रहा है। जिन बच्चों को मनी में इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा हाँ मनी में, हाँ, उनको रोटेशन करना आएगा। इंडियन पब्लिक क्या कर रहा है? मनी को लॉकर में सेव कर स्टॉक देता कर रहा है, स्टॉक है, कर एंड रहा है दैट्स बस। अ स्टॉक। हाँ स्टॉक, और इट इज लाइक अ पेपर। if it is not rotating, money should be rotational, ठीक है। हाँ तो पॉइंट ये है कि एक बच्चा जब स्कूल में राइट सब्जेक्ट चूज करे, उसको वो ऑप्शन मिले कि कौन सा मुझे चूज करना चाहिए, उसमें ऑप्शंस क्या है, तो हम सब्जेक्ट हाँ काउंसलिंग करते हैं उनकी, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे बच्चों ने चूज किया कि सब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद में अपना करियर चूज करे। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स चूज किया, तो इकोनॉमिस्ट इंडिया के टॉप पोजीशंस पे आते हैं, राइट। हाँ एवरी इकोनॉमिस्ट इज ऑन द करेक्ट टॉप, हाईएस्ट पोजीशंस पे है हाँ इकोनॉमिस्ट। तो करेक्ट उनको वो पता होना चाहिए कि हम क्या बन सकते हैं और कितना पैसा अर्न कर सकते हैं इसके थ्रू। हाँ हाँ तो हाँ ये बताना करियर पाथ क्रिएशन होता है, मतलब उनका हाँ विजन क्लियर करना, ड्रीम क्लियर करना कि हाँ अब चूज आप करो। आप चाहे चूज करो कि इकोनॉमिक्स का टीचर ही बनना है मुझे, ये हाँ आपकी इच्छा होनी चाहिए, ना कि मेरी, कि आप हाँ वही इकोनॉमिस्ट बनो। नो, इट शुड नॉट बी माइंड। आपको जो सेटिस्फाई करता है वो बनो, करेक्ट एंड नथिंग इज टॉप और लोअर, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर्स ही, जो राइट टीचर्स होंगे तभी इतने सारे इकोनॉमिस्ट निकलेंगे। अगर वो बच्चा इकोनॉमी में टीचर बनना चाहता है, ही शुड बी। आप समझ रहे हैं जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसी करेक्ट से रिलेटेड, कि हाँ बच्चों को क्या बनना चाहिए ये उन्हें डिसाइड करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेवरेट या मोस्ट अट्रैक्टिव हाँ सब्जेक्ट्स। उसके बेसिस पे उनका विजन उनको क्लियर रखना चाहिए, क्लियर करना चाहिए हाँ कि मैं बनना क्या बन सकता हूं। पहले ऑप्शंस तलाशो, लाइक माय जर्नी, आई फाइंड इट आउट कि मैनेजर बनना है, क्या बनना है डायरेक्टर्स में, और मैंने सीईओ डिसाइड किया एंड आई बिकेम टुडे। तो ऐसे ही बच्चों को क्लियर करना चाहिए, देन यू गेट। जब आप, अब मैं एम्प्लॉय बन गई थी, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर में शिफ्ट हुई, टू बिकम, टू गेट दैट, तो आप रास्ता खुद तलाश कर लोगे, चाहे फेल होगे, चाहे आप आएंगे, चाहे जब डाउन आपको आएंगे। पता चलेगा कि कैसे ये करना है. My यस, question was, what is the ratio of people choosing employee and employer? So सो just want to know कि how many people are still interested to become an employee, सो because there is अभी this जो wave, आपने right? क्वेश्चन किया Whenever, था, हाँ, yeah, उसमें क्या है, पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि आपको एम्प्लॉयर वाला जो ऑप्शन है, हाँ, इसको बेटर थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेन करो। चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम. ओके, तो 11th क्लास में देयर आर स्टूडेंट्स जो फ्रेशर्स पार्टी और फेयरवेल पार्टी अरेंज करते हैं। देयर आर स्टूडेंट्स, राइट, यू नो, एंड
इट इज स्टेटेड, राइट? Okay. तो उन बच्चों में ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, उनमें लीडरशिप स्किल्स होते हैं, उनमें फंड मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन अमंग वेंडर्स, स्टूडेंट्स, जूनियर्स, टीचर्स, एवरीबडी। Correct. उन लोगों में ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है, तो उन्हें एमबीए करने की क्या जरूरत है? Already they know that. Yeah. Okay. they already have that leadership skills. हाँ. तो ऐसे बच्चों को अगर हम ऑलरेडी एक ऑप्शन दे कि तुम्हारे पास अभी जो आप कर रहे हो एजुकेशन आप कंटिन्यू रखो, दैट शुड बी देयर, द बेसिक एजुकेशन शुड बी देयर। आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, जो भी एजुकेशन आपको लेना है लेते रहो, साथ में यू शुड एक्सप्लोर ईएपी विच वी आर प्रोवाइडिंग, कि ईएपी एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, उसको ज्वाइन करो। वो वर्कशॉप्स है, तो वीकली वर्कशॉप्स होती हैं, और उस वर्कशॉप्स के थ्रू आप ये जान पाओगे कि आप एम्प्लॉयर बन सकते हो या नहीं, और आपके अंदर वो कीड़ा है या नहीं। तो अगर आपके अंदर वो कीड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि, और आप ट्राई करो, फिर भी ट्राई करो, ठीक है, तो आप छोड़ो मत उसे। अब जब तक आपकी ग्रेजुएशन होगी 3 साल, इट्स अ लॉन्ग टाइम, राइट? तो तब तक आप एक आइडिया डेवलप करो, 10 में से 50 में से एक आइडिया आप एक डेवलप करो और उसे मार्केट में ट्राई करो हमारे सपोर्ट के साथ। फेल हो फिर से ट्राई करो, बट चूज आप खुद करो कि एम्प्लॉय बनना है, मीन्स यू आर सुटेबल और यू आर अ बेटर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। चूज यू, मतलब इट शुड बी चोजन बाय यू। Existing Yes. programs or understanding what things are there. Yes. Getting And they information should from- decide. तो अभी क्या है, हम लोग आप मतलब स्टूडेंट को 50-50% ऑप्शन दे रहे हैं। आप अपना 3 साल एम्प्लॉय की भी तैयारी करो और एम्प्लॉयर की भी, एंड वाइजली डिसाइड करो। आफ्टर ग्रेजुएशन यू आर मेच्योर इनफ टू डिसाइड योर करियर, राइट? तो तब तक आप आराम से कर लो। तो अभी वो आपका जो क्वेश्चन था, वो उसका आंसर देना है या नहीं? What advice you would like to give to the young entrepreneurs? When I say young, not as far as age, but then who have just started their startup or the venture way 6 months back or 1 year back, what advice you would like to give them? What आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसमें, जैसे कि अभी अगर इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मेरे को अगर आप ये सवाल पूछते हो तो मैं बोलता था कि रजिस्ट्रेशन के पीछे मत पड़ो। कंपनी स्टार्ट करना है तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके बियॉन्ड बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे कि ऑपरेशंस है, मार्केटिंग है, टीम बिल्डिंग है। उन सारे चीजों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि वेन एवर आई लुक अप टू पीपल इन एनी नेटवर्किंग सेशंस एंड ऑल, पीपल कम टू मी हु आर जस्ट स्टार्टेड, या फिर स्टूडेंट्स रहते हैं, या फिर वो लोग मुझे आके पूछते हैं कंपनी किस में रजिस्टर करनी चाहिए, जो कि मैटर ही नहीं करता है अनलेस यू स्टार्ट गेनिंग सम सेल्स। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा, इवन इन दैट केस इवन आई हैव नॉट अचीव्ड सो मच कि मैं कुछ एडवाइस दूं। इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर कोई कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में जो अननोटिसिंगली जिस पे एफर्ट्स डाल रहे हैं लोग, जिसको एफर्ट डालना नहीं चाहिए, ऐसा कोई चीज जो आपको लगता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज one key is honest. You should be honest with your thoughts, with yourself, to others as well. Means honesty everywhere is important. Everywhere means जो आप बोल रहे हो ना, वो आपका माइंड सुन रहा है। तो अगर आप किसी और से डिसऑनेस्ट होते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डिसऑनेस्टी जा चुकी है और वो आपको हैम्पर करेगी, आपको नहीं पता, ठीक है? तो ऑनेस्टली सेम चीज थोड़े दिन पहले मेरे को ये एडवाइस मिली थी, जो आपने मुझे आप बता रहे हो कि आपको मतलब लोगों को लगता है कि दे आर फूलिंग अराउंड पीपल बाय टेलिंग और रेजिस्टिंग देमसेल्व्स कि वैसा नहीं है वैसा है, बट एक्चुअली वो उनको ही इतना हार्म करता रहता है कि उस चीज को आप 15-20 दिन 1 महीने तक कैरी करते रहते हो। सो आप उससे रिजॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने ही खुद ने वो जैसे कंप्यूटर में आप कुछ भी फीड करते हो, आपने ABCD लिखा तो आपको दिखेगा भी तो ABCD ही, तो जो आपने फीड किया है अंदर, इट विल कम ऑटोमेटिकली ऑन योर फेस।
तो इट इज सिंपल. तो एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ इज द प्राइमरी थिंग. सेकेंडली, आई वुड, मतलब अभी बात करते करते आया है, बट आई नेवर सजेस्ट दिस बिकॉज इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि don't run, because for me competition is not a single word. This word doesn't exist for me, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू आर यूनिक, सो इज योर जर्नी, सो इज योर आइडियाज, सो इज योर रिजल्ट. तो अगर आप ऑनेस्ट हो, आप अपना बेवकूफ नहीं बना रहे हो, ठीक है, देन आपको ये पता चलेगा कि आप तो बहुत अलग हो इस क्राउड से. मतलब लोग क्राउड की बात करते हैं, बट आप हर किसी से डिफरेंट हो, हर किसी से. बिकॉज हम लोगों के इसके पीछे बहुत एक नॉर्मल सा लॉजिक है. आपकी परिस्थिति आप किसी से भी कंपेयर करो. जो फॉलोइंग बोलते हैं, हम फॉलोइंग्स, हम फॉलो करते हैं लोगों को, हम किसी एक चीज को, हमें उसकी कोई एक चीज अच्छी लगती है, लेकिन हम फॉलो उसको, उसकी पूरी की पूरी डे रूटीन को कर लेते हैं, विच इज हार्मफुल. तो हम क्या कर रहे हैं, जो पहला पॉइंट था, आप अपने आप से डिसऑनेस्ट हो रहे हो. आप उस बंदे को फॉलो कर रहे हो और उसकी चीजें कॉपी कर रहे हो फॉर वन थिंग. So be honest with you and don't follow that. What is the right word? I'm not getting the right word, but आप don't follow their lifestyle. If they are waking don't up follow early, anything. Don't follow anything. I would say, don't follow anything. Just follow yourself, because you are you are different, you are unique. So अगर आप अपने आप को फॉलो करोगे, just like my journey, I follow only my instincts. What I wanted to be, like MBA करना था, अंदर से ऑटोमेटिकली MBA निकला. MBA करना है तो सोल्यूशन मैंने 3 साल तक या 4 साल तक एफर्ट्स डाले उसके लिए, तब मुझे MBA मिला. MBA ऐसे नहीं मिला. और थर्ड क्लास कॉलेज मिला. अगर आप रिजल्ट देखोगे तो थर्ड क्लास कॉलेज मिला, जो अभी बंद हो चुका है. तो रिजल्ट इज डिफरेंट, बट योर डेस्टिनी इज डिफरेंट. आपको लग रहा है आप कंपेयर कर रहे हो लोगों से, तो कंपैरिजन इज नॉट अ वर्ड फॉर यू. इट डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली. अगर आप कर सकते हो तो आप करो, आप अपने आप को फॉलो करो. तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका एक डिफरेंट सा आइडिया निकलेगा जो बिल्कुल यूनिक होगा. जैसे मेरा स्ट्रेंजर होना निकला, इट इज डिफरेंट फ्रॉम, मुझे किसी से, पीपल आस्क मी कि आप मुझे बताओ कंपैरिजन में. सबके पास छोटी छोटी चीजें हैं. मैंने कहा नहीं, मेरा कंपैरिजन है ही नहीं किसी से. व्हेन आई से दिस, दे थिंक आई एम ब्लंट, बट आई से दिस थिंग बिकॉज मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट में, क्योंकि कोई इतना एफर्ट कर ही नहीं सकता जितने मैंने एफर्ट किया, और मुझे पसंद है वो एफर्ट करना. nobody can do that effort, क्योंकि वो अपने तरीके से एफर्ट करने में एक्सपर्ट है. राइट? वो अपने, जो उन्हें पसंद है वो वाले एफर्ट करेंगे, वो मेरे वाले क्यों करेंगे? सिंपल है. और अगर वो कर रहे हैं तो वो बेवकूफी कर रहे हैं. वो डिसऑनेस्ट हो रहे हैं अपने आप से. So first is honest, second is unique. Be unique. Follow yourself. Automatically you will, this universe will get you results. Absolutely. You deserve whatever you deserve. And 100% what I believe is कि universal जो होता है ना रिजल्ट, आपकी सोच से बहुत परे होता है, बहुत अच्छा होता है. जैसे मेरे हस्बैंड, मतलब मुझे जब मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई है, एंड दिस डेस्टिनी क्रिएटेड आवर मैरिज, आई बिलीव कि एवरीथिंग इज पॉसिबल. एवरीथिंग इज, बिकॉज ही वॉज इन लंडन दैट टाइम जब हमारी बात होती थी. Okay, nice. हाँ, तो he came here, how we met, how this shadi happened we had a temple marriage. Yeah. It was really an inspiring journey
Shruti, and a lot of things few things I have learned new, few things I have relearned it. Few things are like which are like new to me, totally new कि अब इस चीज पे भी मेरे को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. I need to understand and learn better. So in that way, it was really inspiring and most healthy discussion I had with you. It was so much fun and also learning. So thank you so much for being part of my show, Shruti. Thank you so much for such a wonderful explanation about each and every questions which I have put across. And moreover, it was absolutely a learning session for me. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me. Thank Thank you. you. Yeah. It was nice.